to the day 2 of our Linux workshop. Do you किसी को भी कुछ डाउट है? मैं आज पूरा हिंदी में बात करूंगा। कल मुझे बोला गया कि हिंदी में अच्छे से समझा रहे थे तुम, तो किसी को भी कोई डाउट है कल का तो बता सकता है। अभी हम वो ले लेते हैं पहले, देन विल मूव फॉरवर्ड। तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट है। तो अभी कुछ लोग एसीएम की मीटिंग में होंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ एक चीज़ कि हम लोग ये सेशन जो है वो अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो जो मिस हो जाएगा। बाद में ज्वाइन कर लेना। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? थिंक इट इज। तो आज हम सीखेंगे व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स एंड कमांड लाइंस। So for that I have a diagram over here. This is the basic diagram of that. This yellow arrow shows the streams. Actually, streams are like water; they can flow, and you will get to know what do we mean by flow when we'll move forward in the session. So standard input stream is I think more people are coming. So standard input stream for our Linux operating system is our terminal, that is our keyboard in which we input our commands. This is our input stream. We input the data in the terminal using our keyboard. So this is our input stream. Command arguments are also the same, but it depends on the command that we are using. We should call it a command line argument or a standard input stream. Standard output stream is also the terminal, and standard error stream is also the terminal. You know, like we type echo hi in this command. Here hi was our standard input, and hi, this high was our standard output. So we entered high through our keyboard on the terminal, and it outputted the data on our terminal as well. So this is about the standard input stream and output stream. These streams are given the numbers, like standard input stream is given number 0, standard output stream is given number 1, and standard error stream is given number 2. You will get to know the meaning of these numbers later on. So let's move to the terminal. I'll show you a few things. We'll use another new command known as cat command. Cat hi, it is showing an error. This is the error stream. Wait a second. So this is standard error stream. Look, I told you the error stream is connected to the terminal as well. Whenever we'll get an error, it will be shown on the terminal itself. All right. People are joining so late. And here is another command that we have used tomorrow. Cal 12 20 21 will use. This command shows the calendar of month 12 in 2021. In this command, in cal, 12 and 2021 were its command line inputs. All right, and in here high was its uh, you can say uh, stream input stream. Look here, it is used properly. um, uh, Here it is.
So the difference between command line and data stream is that data streams can flow, we can redirect or pipe them together. You'll know what is redirect and pipe them together in the later session. Command line arguments are only associated with commands or options we are dealing with, but input streams are not. They are connected to overall command. So now I'll since I've told you what data streams can flow, what I mean by that is we can output its data to another command that actually हम यहाँ पे ना कुछ commands को connect कर सकते हैं अगर हम data streams को connect कर data streams use करते हैं तो वहां से हम अलग अलग commands को connect कर सकते हैं which is known as pipelining. So I'll show you a few tricks over here. Cat command, it is used to output data as well. Put output dot txt. This command is actually used to output a data from input stream, that is our terminal, to a file known as to a file output.txt that is present in our home directory. So if I'll write hi over here, it will write hi in the output.txt, and to close that I'll write control C. So now let's see in our home folder is there output.txt file. Look, here it is hi. When I'll write another command like this, I'll write cat again output. Let's write hello, and again control C to close that, and it is asking for a reload. Look here, uh, the text is changed now. So the thing is, we can also use that was a output stream. प्लीज पहले ज्वाइन किया करो यार, मैं तब से यही किए जा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है काफी. So it was the cat command is used to output data in the output.txt file. That this symbol is used for output streams. We have two output streams. That one was the error output stream and the other one was standard output stream that I showed previously. Output standard output stream was given number 1 and standard output stream was standard error stream was given number 2. Look at here. If I'll write cat1 output.txt, it will again Linux, and we'll again close it and reload. Look, here it is, hello from Linux. तो जो ये कमांड है ना, इसमें जो 1 है ये बता रहा है कि हमको कौन सी स्ट्रीम में ये लिखना है. जो इसका आउटपुट होगा, जो कैट से हमको आउटपुट मिलेगा वो हम इस फाइल में डाल सकते हैं. हमको इस फाइल में डालना है. मैं यही करते रहूंगा, सॉरी. So here it is. It is equivalent since you have seen this command and these command are equivalent. Actually, for output streams we have for output stream we have two streams, that is standard output and standard error. So one was given to standard output and the two number was given to standard error. By default it is 1. If we don't write 1 over here, it will output the data in the output file itself. We don't need to write 1, but for error stream we have to write 2. So now let's check another thing. अब देखो एक चीज यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, like I'll write again and again cat1 something something, control C, यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे चेंज हो रहा है. इससे तो ये होगा कि मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो चेंज ही होता रहेगा हमेशा. तो इसको कैसे रोकते हैं? इसके लिए एक और सिंबल यूज होता है, this greater than symbol. It means we can append whatever it is on the file. Now I'll write another thing and control C will again ask for reload. Look over here. जो ये फाइल थी, अब ये पहले डिलीट नहीं हो उसका सारा डेटा, बस अपेंड हो गया. तो जो ये डबल एरोज हैं इससे डेटा अपेंड होता है आउटपुट
फाइल में, जो भी इसका हम आउटपुट स्ट्रीम से हम डेटा बाहर भेजना चाहते हैं किसी भी फाइल में या कहीं पे भी। ठीक है, अब थोड़ा एरर स्ट्रीम को देख लेते हैं। लाइक कैट कमांड में डैश की ऑप्शन नहीं होता, तो ये जो ये आया, ये हमारा एक वो था, एरर था। ऑलराइट, तो अब इस ये एरर जो था ये बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है हमारे टर्मिनल से, तो जो भी एरर होगा वो हमारे इस टर्मिनल पे शो होगा। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, कि मैं नहीं चाहता कि इसमें शो हो। दैट्स वेयर द पावर ऑफ डेटा स्ट्रीम्स कम इनटू पावर। आई टोल्ड यू, हम जो स्ट्रीम्स होते हैं इनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे जाना है तुमको। तो नाउ आई एक्चुअली लेट्स मूव टू डेस्कटॉप फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, यहाँ पे हम साथ साथ में देखेंगे। यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएटेड है, यहाँ पे हम साथ साथ में देखेंगे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। नाउ जो ये कमांड थी, इससे एक एरर आया यहाँ पर। अब मेरे को ये एरर किसी फाइल में राइट कराना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, कैट डैश के blah, and blah is anything I want to write, like anything I want. And now like here we don't need to use one. जब मैंने बताया था कि ये वन जरूरी नहीं है, बट ये एरर आने वाला है ना, तो हमको एरर के लिए टू लिखना जरूरी होता है। एरर डॉट टी एक्स टी, लुक हेयर इट इज। जो हमारा ये एरर आया था वो डायरेक्टली इसके अंदर चला गया, वो टर्मिनल पे आउटपुट नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्ट्रीम की डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले ये टर्मिनल से कनेक्टेड थी, अब वो कनेक्टेड है इस फाइल से। जो भी मैं आउटपुट कराऊंगा वो इस पे आ जाएगा। बट यहाँ पे अभी वही चक्कर हो रहा है कि देखो यहाँ पे वापिस से डेटा रिमूव हो रहा है। सो अब मैं यहाँ पे वापिस से ऐसे करूंगा, डबल एरोज लगा दूंगा, उससे ये ऐसे का। अब ये इसका फीचर ये होता है, जब कभी ना हम सर्वर यूज कर रहे होते हैं ना, सर्वर में अलग अलग लॉग फाइल चल रही होती हैं, तो उनमें अलग अलग एरर्स आते हैं, और वो यहाँ पे एक एरर फाइल में कलेक्ट होते रहते हैं जिनको हम मोस्टली एरर डॉट लॉग फाइल से जानते हैं। तो उसको अपेंड करते रहना जरूरी होता है, क्योंकि हमको चाहिए देखना होता है ना पीछे वाले क्या एरर्स हैं, ताकि हम फ्यूचर के एरर्स भी देख सकें। अगर हम सिंपली ये सिंगल एरो लगाएंगे, उससे वो डिलीट कर देगा पिछली इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे डबल एरो यूज करके इसमें अपेंड करते हैं हमारा डेटा। तो अब मैं एक और बताता हूँ, आउटपुट और एरर स्ट्रीम का कनेक्शन बताता हूँ, एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम और स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम का। नाउ लेट्स सी अनदर थिंग। कैट वन was used for standard output stream, output dot txt, and to error dot txt। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा अभी, लाइक इसको बंद कर देते हैं पहले। यहाँ पे देखो, इसमें ये क्रिएट होगी, एरर फाइल तो पहले से थी यहाँ पे, इसमें वो अपेंड हुई, और यहाँ पे आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल यहाँ से बनी। इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा, अब देखो आउटपुट डॉट टी एक्स टी में ये आ गया। और यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं था, तो हमारी एरर फाइल में कुछ नहीं आएगा। बट इसमें ये पड़ा हुआ है, जो प्रीवियस कमांड दिखाई थी उसका पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसको बंद कर देते हैं, तो मैं दोबारा इसको रन करूंगा। I'll write anything and control C, you can see over here, ये वापिस से अपेंड हो गया, और ये एरर फाइल वापिस से एम्प्टी रहेगी, क्योंकि कोई एरर नहीं आया। अगर कोई एरर आता तो यहाँ पे वो एरर फाइल में जाता है, ना कि आउटपुट फाइल में। सो एंड लेट्स सी अनदर थिंग, वी कैन remove this one. Like I told you previously, one is not necessary to write, but we have to write two, because that is what is the distinguishing factor. Otherwise ये इसको भी अगर हम यहाँ से टू हटा देंगे ना, तो ये इसको भी आउटपुट कर देगा। वापिस से ये इसमें अपेंड हो जाएगा जो भी कुछ हमने यहाँ पे लिखा, और एरर फाइल वापिस से एम्प्टी रह जाएगी।
बट अगर अब मैं यहाँ पे 2 रिमूव कर देता हूँ, ये कमांड तब भी चलेगी, बट अभी क्या होगा यहाँ पे, जो एरर फाइल के अंदर भी वही सेम चीज लिखी आ जाएगी जो आउटपुट फाइल में है। बट हमको चाहिए कि अलग अलग आना चाहिए दोनों फाइल में। जो एरर फाइल का काम है एरर्स करेक्ट करना, और आउटपुट फाइल का काम था आउटपुट करेक्ट करना। तो इसके लिए 1 और 2 का डिस्टिंग्विश था यहाँ पे। 1 हम लिखे या ना लिखे, बट 2 लिखना वॉज नेसेसिटी। तो अब मैं थोड़ा इनपुट स्ट्रीम का बताता हूँ यहाँ पे। पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, cat input.txt। I'll write people, hi people, कंट्रोल सी, ये बंद हो गया यहाँ से। अब ये है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। अभी तक हम ये देखो, ये जो एरो था, जो ग्रेटर देन साइन था, ये फाइल की तरफ पॉइंट कर रहा था जिसमें हमको लिखना था। अब इसको इस तरीके से याद रखो, अब अगर हमको फाइल से उठाना है कोई डेटा, तो ये वाला हमको सिंबल यूज करना था। अब क्या हो रहा है, जो डेटा था इनपुट फाइल से, इनपुट डॉट टीएक्सटी फाइल से जो हमने पहले बनाई थी आउटपुट स्ट्रीम से, अब हमने वो यहाँ पे इनपुट कराया कैट कमांड के, और कैट कमांड ने वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हम कैट 0 भी करेंगे, बिकॉज इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें जो इनपुट स्ट्रीम होती है वो एक ही होती है, वो 0 वाली होती है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। और जो आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं वो 2 होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, एक होती है स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। तो उसके लिए डिस्टिंग्विश फैक्टर जरूरी है, बट इसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा तब भी ये फाइल से उठा के सेम कमांड देगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, कैट 0 input.txt and 1 hello.txt। अब यहाँ से ऐसा, यहाँ पे क्या हुआ, जो इस कमांड ने क्या किया, इस कमांड ने पहले input.txt से वो उठाया कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एंड देन उसने आउटपुट कर दिया hello.txt में। ये hello.txt फाइल यहाँ पे नहीं थी। अगर यहाँ पे फाइल होती नहीं है ना, तो ये ऑटोमेटिकली वो फाइल क्रिएट कर देता है। मैंने हेलो डॉट टीएक्सटी फाइल में कुछ नहीं लिखा था, बट इसमें ऑटोमेटिकली हाई पीपल आ गया, क्योंकि इनपुट डॉट टीएक्सटी फाइल में पहले से ही हाई पीपल था। तो इस कैट कमांड ने इस आर्गुमेंट का यूज करके हाई पीपल उठाया, और इस कमांड का यूज करके हाई कमांड को हेलो डॉट टीएक्सटी में लिख दिया। इट वाज अ डिफरेंस। And let me tell you another thing. Everything in Linux is treated as a file, even the terminal itself. I'll show you a magic. Let's open another terminal. I'll use a command tty. This command is used to show where this terminal is, its file is located. कि मतलब ये टर्मिनल कहाँ से स्टार्ट है। इस टर्मिनल का भी tty डालूंगा तो वो कुछ हो आएगा। You can hide this. ये देखो, इसका dev pts 0 आया और इसका dev pts 1 आया, क्योंकि ये पहले खुला था टर्मिनल और ये बाद में खुला टर्मिनल, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, cat 0 input stream from input.txt and I want to output it to a file which is located at dev pts 1। look, जो कुछ इसने input.txt से उठाया और इसने यहाँ पे इस वाली फाइल पे भेज दिया, और ये वाली फाइल कहाँ से कनेक्टेड थी, इस टर्मिनल से। तो इस टर्मिनल पे प्रिंट हुआ हाई पीपल। दैट्स द पावर ऑफ स्ट्रीम्स। हम स्ट्रीम्स का डेटा कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यू कैन थिंक इट एज, हमारे घर में एक टंकी होती है ना, उससे एक मेजर पाइप कनेक्ट होती है, उससे पानी आता है, उस पानी को हम हमारे अपने घर के अलग अलग जगहों पे भेज सकते हैं। वही इसका मतलब होता है कि हम स्ट्रीम्स को कहीं पे भी भेज सकते हैं, उनका किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, उनका किसी और कमांड के साथ भी यूज करते हैं। लाइक तुम्हारे यहाँ पे किचन में पानी आता होगा, तुम उसके डायरेक्टली टैप से भी खोलते हो, और वही टैप जो होता है ऊपर कनेक्टेड होता है फिल्टर से भी। तो वो एक ही पानी जो आ रहा है पीछे पाइप से, वो हमने ऊपर फिल्टर में भी भेजा, और टैप से भी डायरेक्टली बाहर आ रहा है। तो फिल्टर्ड वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम द टैप वाटर। तो जो वो फिल्टर्ड वाटर था उसके ऊपर फिल्टर ने अपना काम किया, जो वो फिल्टर है वो एक अलग कमांड है, तो उसका आउटपुट वहां से आ रहा है। So that's where the streams come into power. So I'll
tell you more about piping and redirection tomorrow. For now, Madhur will take over. Hello, am I audible? Yes, yes. So someone asked me, like, can you use it in socket programming? Yes, we can use it in socket programming. Like, मतलब कैसे होता है ना socket programming में दो कंप्यूटर्स साथ में बात कर सकते हैं बिकॉज वी कनेक्टेड थ्रू सॉकेट्स. लाइक आपको दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चाहिए रहते हैं एंड देन यू कनेक्ट टू ईच अदर. तो क्या कर सकते हैं ना, वैसे आउटपुट हम लोग टर्मिनल पे दिखाते हैं. तो इफ यू वांट टू कीप कंटिन्यूइंग इट लाइक लॉन्ग, अगर आप मैसेजेस भेजते रहते हो एक से दूसरे कंप्यूटर पे, सो यू कैन रिडायरेक्ट इट्स आउटपुट टू अ फाइल. पर उसमें ऐसा नहीं होता. मतलब इधर कैसे कमांड दे रहे हैं ना, हमको फाइल मतलब कोड के अंदर लिखना पड़ता है कि फाइल को ओपन करना पड़ता है पहले राइट मोड में, एंड देन जो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है ना उसको एक बफर में लेके वो बफर को हमको फाइल में लिखना पड़ता है. समझ में आ रहा है पलश? Yes, brother. ठीक है, तो मैं चालू कर रहा हूँ. पहले हम लोग रिदम, आई लाइक यू टू शेयर द स्क्रीन एंड प्रेजेंट योर स्क्रीन एंड शो देम द फाइल लोकेशंस. रिदम, wait a second. Yeah, I'm sharing. Is it visible? या तो अभी आप लोग को ये सब दिख रहे हैं ना फाइल जो वगैरह? तो अभी मैं बताते जाऊंगा कि इनमें से फाइल्स का मतलब क्या है. इनमें से जो दो चार या नीचे जो 5-6 फाइल्स दिख रही है ना, रिकॉर्डिंग्स जो दिव्या, जो रिकॉर्डिंग्स है ना वो हम लोग यूट्यूब पे डालने वाले, तो तुम लोग उधर से एक्सेस कर सकते हो अगर तुमको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो. अगर कुछ मिस हुआ है तो हम वहां पे डालेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, can you share that YouTube link with us? या we'll share it. Okay, thank you. Yes, Divya, I'll be अभी sharing the link in the chat box so everyone can access the link. And the recording will be uploaded in a day or two. Okay, thank you so much. Rhythm, there is a doubt. What is the function of this cat dash k blah? Actually, there is no function of that. Cat dash k was a wrong command. Cat command is used to output data. It was like similar to echo command. I write dash k to show an error कि जब एरर आएगा तो ऐसा एक आउटपुट देगा टर्मिनल हमको एरर स्ट्रीम पे. तो वो डैश के गलत था, वो मैं इंटेंशनली मैंने गलत डाला था ताकि वहां पे दिखे कि एरर कैसे आता है. समझे कविता? ऐसा कुछ ब्ला तो एक आर्ग्यूमेंट था वहां पे. मैं वहां पे हेलो भी लिख सकता था, बस वो प्रिंट कर देता वापस से. वो बात थी वहां पे. कैट डैश के, देयर वाज नथिंग लाइक कैट डैश के. It's understood, Kavita? All right. So, Madhur, here is the root folder. This is a root folder. तो अभी मैं आपको बता दूंगा ये सारा ना फाइल सिस्टम है. ये सारा इंक्लूडेड है फाइल सिस्टम में. So what I'll do is I'll go on explaining each and every folder here that you're seeing, and उनके अंदर क्या होता है, वो क्यों यूज होते हैं और किस चीज के लिए वो. ओके, तो स्वैप फाइल तो मैंने कल बता दिया था, फिर भी मैं एक और बार बता देता हूँ. Rhythm, can you please right click on swap file and show its properties? Where it is? अच्छा ये रही. ओके, स्वैप फाइल का देखो 2.1 GB दिखा रहा है इसके इसमें साइज. या मैंने काफी बड़ा बनाया था शायद. हाँ, तो आपके ऊपर रहता है. जब भी आप सिस्टम को मतलब ये करते हो ना फर्स्ट टाइम के लिए, जब भी आप डालते हो लिनक्स अपने कंप्यूटर में या इस पे वर्चुअल बॉक्स पे, तो आपको पूछते हैं इंस्टॉलेशन के बाद कि आपको स्वैप स्पेस कितनी चाहिए. तो स्वैप स्पेस सिलेक्ट कर, स्वैप स्पेस में मैंने आपको कल बताया था ना कि जो प्रोसेस रैम पे बैठी रहती है, जिनका प्रोसेस लॉक रहते हैं या जिनको कुछ काम नहीं रहते, जो फिलहाल के लिए अभी रैम पे कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ ऐसे ही बैठी है, तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना, उनको स्वैप फाइल में डाल देते हैं. दे आर प्रोसेस स्टिल नाउ, बट वो हार्ड डिस्क पे आ चुकी है. हाँ, हार्ड डिस्क पे प्रोसेस है. ऐसे हमने हार्ड डिस्क पे ने लाइक रैम बनाया है, वर्चुअल रैम, दैट इज स्वैप फाइल. फिर जैसे ही उनके रिसोर्सेज या सब कुछ एक्सेस के लिए उनको मिल जाते हैं ना, या रैम पे स्पेस आ जाती है, तो उनको वापस रैम पे शिफ्ट कर दिया जाता है स्वैप फाइल में से. इसलिए बाइनरी फाइल है, क्योंकि रैम पे सिर्फ बाइनरी फाइल्स ही रहती है.
और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आपको एक रूट फोल्डर दिखता होगा रिदम, रूट फोल्डर, हाँ। रूट फोल्डर के अंदर ना अभी आप अगर जाओगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं पासवर्ड डालने के बाद भी, बट दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फाइल सिस्टम। एक्चुअली रूट मतलब लिनक्स का फाइल सिस्टम जो देखोगे ना, अगर पूरा लिंक जो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक्स, लाइक एक फुल लिंक रहता है जो एकदम रूट से लेके रहते हैं। अगर आप कोई भी फाइल को एक्सेस करते हो तो उनका पूरा राइट क्लिक करना रिदम रूट पे, ओ सॉरी हाँ रूट पे भी कर सकते हो या किसी और फाइल पे भी, फोल्डर पे। हेलो रिदम, या अपने डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर पे या फाइल पे ये कर देना राइट क्लिक, हाँ समझा समझा मैं, एक मिनट, यहाँ पे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में है। तो अभी आप देखोगे ना Here it तो is. पेरेंट फोल्डर दिख रहा है, पेरेंट फोल्डर। ये जो लिंक है ना, ये पूरा लिंक है, ये फुल लिंक। इसको इसके लिए एक टर्म था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। सो व्हाट इट, तो ये जो फर्स्ट रूट फर्स्ट स्लैश दिख रहा है ना, फर्स्ट स्लैश होम के पहले, दैट इज रूट। फिर होम, होम फोल्डर के बारे में भी बता देता हूँ। होम फोल्डर के अंदर ना आपका पूरा ये रहता है डेटा जो आप रहते हो। मतलब अगर आपने समझो आपने इस पे कंप्यूटर या पीसी पे ना 2 या 3 ये बनाए प्रोफाइल्स बनाए, जैसे आपके भाई का एक है, आपके बहन का एक है, योर डैड यूजेस योर कंप्यूटर सो ही हैज वन प्रोफाइल इन इट। तो होता कैसे ना, उनके सारे वो सारे प्रोफाइल्स होम में रहते, होम होम के अंदर रहते। होम के अंदर अभी जैसे आरडीएम इस रिदम, आरडीएम स्टैंड फॉर रिदम, तो रिदम का ये हाँ हाँ ठीक समझो है। रिदम का प्रोफाइल है। और रिदम के डेस्कटॉप पे डेज नाम का, डे टू नाम का फोल्डर, तो इसके लिए वो रिदम ऐसे दिखा रहे हैं। अगर डे टू के अंदर जाओगे ना तो डेस्कटॉप स्लैश आके डे टू भी आ जाएगा, अगर डे टू के अंदर जाके किसी फाइल का प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो। ओके, और इसके अंदर 4 आइटम्स है टोटलिंग 76 बाइट्स। मतलब इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स है जिनका टोटल सारों फाइल्स का मिला के साइज 76 बाइट्स है। और टाइप देख रहे हो ना, टाइप टाइप भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइप जो है ना, फोल्डर है, फोल्डर डे टू, और आई नोड भी है उसका, और डायरेक्टरी भी है। तो आई नोड क्या रहता है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फोटो के थ्रू बाद में। तो और डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मतलब ये फोल्डर है। और अगर फाइल रहेगा ना तो फाइल के लिए प्लेन दिख रहा है, देखो प्लेन। और टेक्स्ट फाइल है, कौन से टाइप की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। ऐसे फाइल के टाइप्स मैंने आपको एक दो बताए थे कल, जैसे कि फीफो रहते हैं, पाइप्स रहते हैं, देन देयर इज सिंबॉलिक लिंक्स ऑल्सो, टाइप ऑफ फाइल्स। ये सारे ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहते हैं। आई विल टेल यू मोर टाइप्स ऑफ इट। वेट अ सेकंड। तो ये जो ये ना फाइल्स है ना, ये सारे हम के पास रहते हैं। आई टेल यू इन जस्ट अ मिनट, वेट अ सेकंड। तो रिदम, टिल देन यू कैन गो बैक टू द रूट फोल्डर। ओके ये देखो, जैसे हमने वहां पे दिखाया था ना डेस्कटॉप के ऊपर, वो पड़ा था हमारी जो फोल्डर था, वो दिखा रहा था स्लैश होम स्लैश आरडीएम। देखो यहाँ पे मेरा सब कुछ आ गया, ये देखो यहीं पे डेस्कटॉप फोल्डर भी है होगा, किधर गया वो डेस्कटॉप फोल्डर। ये अब वहां से, अब देखो यहाँ पे मैं डे टू पे क्लिक करूंगा, वापिस से वही प्रॉपर्टीज दिखाएगा ये। तो दिस इज हाउ वी ट्रैवल इन, हाउ वी नेविगेट इन लिनक्स। दिस इज द रूट, एवरी फाइल विल स्टार्ट इट्स लिंकेज फ्रॉम दिस पॉइंट, यहीं से सारे लिंक होते हैं। और ऑल्सो देयर आर कैरेक्टर डिवाइस फाइल्स एंड ब्लॉक डिवाइस फाइल्स। ब्लॉक डिवाइस कैसे रहते हैं ना, स्टोरेज के लिए रहते हैं मोस्टली, एंड कैरेक्टर डिवाइस इज फॉर ट्रांसफर। ब्लॉक डिवाइस का साइज ना बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू कैरेक्टर डिवाइस। कैरेक्टर डिवाइस छोटा रहता है तो लाइक बाइट बाय बाइट ट्रांसफर करता है, और ब्लॉक डिवाइस इज बिगर एज कम्पेयर टू कैरेक्टर डिवाइस, तो वो स्टोर करते हैं। कैरेक्टर डिवाइस इज मोस्टली यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा, व्हाइल ब्लॉक डिवाइस इज यूज फॉर स्टोरिंग। Okay, so we have completed root. Now I'll tell you another folder. I'll move on to the next folder. So here I'm talking about bin. अभी bin folder के अंदर first folder rhythm.
बिन फोल्डर के अंदर आप देखोगे ना ये सारे कमांड्स के ये रिदम कैन यू या यू सॉ रिदम ने आपको डेट का कमांड एक्सप्लेन किया था, तो डेट का दिख रहा है। डेट का कमांड जब आप टर्मिनल पे डालते हो ना तो ये वाला फाइल रन होता है। देन देयर इज सीपी कमांड, वही लाइन में सेकंड सीपी, बहुत सारे कमांड्स है। देन देयर इज इको डीडी के नीचे रिदम। रिदम कैन यू ट्राई टू ओपन वन फाइल इफ यू कैन। No, I can't open it. वो क्यों नहीं होता है पता है? क्योंकि ये इसके सिस्टम के फाइल्स है। अगर आपने इसमें कुछ चेंज करना तो या तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर कुछ चेंज कर दिया ना तो फंक्शनिंग ऑफ दैट कमांड विल कंप्लीटली चेंज। और इनको और ये फाइल्स वो है रिकर्सिव, मतलब ये सिस्टम फाइल है ना, तो इनको आप डिलीट कर दोगे तो ये अपने आप वापस आ जाएंगी। यू कैन नॉट लाइक रिमूव देम फॉर एवर। देन देयर इज chmod। आपने इन कमांड्स के बारे में सुना है या नहीं मुझे पता नहीं, बट दीज ऑल आर कमांड्स। यू कैन स्वाइप डाउन रिदम। डोमेन नेम कमांड है देखो। किल कमांड है। किल इज यूज्ड फॉर किलिंग अ प्रोसेस। उसका प्रोसेस आईडी देना पड़ता है। एंड किल के बाजू में किल रिक्वायर्स प्रोसेस आईडी एंड देन यू कैन किल दैट प्रोसेस ऑन रैम। देन देयर इज आईपी एंड होस्ट नेम। देन देयर इज ls कमांड एज यू कैन सी किल के नीचे ही। ls ये सबसे ये ज्यादा यूज कमांड्स होने जो वाली है कमांड है। अगर आप ls करोगे अपने पीसी पे तो आपको ls के नीचे ये पूरा ls का ये कोड रन होता है। एंड जैसे हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ना, तो ये सारे प्रोग्राम्स के अंदर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ही लेते हैं। जैसे ls-a हम डालते हैं तो वो चेक करते हैं अगर सेकंड कमांड लाइन इज लाइक -a और -r एक्सेट्रा, तो उस हिसाब से वो डिस्प्ले करते हैं। फाइल की साइजेस भी आप देख सकते हो 142.1 KB दिखा रहा है। दैट इज प्रीटी मच लॉन्ग प्रोग्राम, क्योंकि इनके अंदर पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है। मतलब जो हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h वगैरह करते हैं वो भी पूरा लिखा हुआ है इनके अंदर। और ये these files are connected to each other in other folders. Okay, Rhythm, you can go back. I'll move on to the next folder. So the next folder is boot. अब boot folder में जो आप देख रहे हो ना, grub पता है किसी को? grub, I like someone to tell me grub. What is grub? Anyone? Anjali, Ved Pathak, please can you unmute yourself and tell me what is grub? वो पैकेज है शायद ना, GNU प्रोडक्ट को लोड करने के लिए शायद। क्या वापस बोलना? आई एम नॉट श्योर, बट वो एक पैकेज है जो भी हम GNU प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी करते हैं ना, तो उसको रन करने के लिए जब भी हम वो कॉल करते हैं तब ग्रब यूज होता है शायद। नहीं। See, you are going wrong way, but I'll tell you what it is. कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई कि आपने गलत बोला तो भी। Rhythm, I like you to go back to the grub boot folder. So अभी अपने grub पता है क्या है? अगर आप ड्यूअल बूट करते हो ना अगर अपने कंप्यूटर को, तो चालू होने पे ही ना पहले वो grub दिखते हैं। grub ब्लैक स्क्रीन दिखते हैं जिसपे सारे नाम दिखते हैं आपके कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विच वन यू वुड लाइक टू लोड। लाइक अगर विंडोज रहेगा तो पूछेगा विंडो एग्जांपल यू हैव विंडोज 10, you have Fedora Linux, you have Ubuntu Linux and you have Kali Linux. तो जैसे ही आप मतलब पावर बटन दबाते हो ना एंड सिस्टम गेट्स पावर, तो जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है एक ब्लैक स्क्रीन आएगा आपके ऊपर। यू कैन चेंज द कलर ऑफ द ग्रब एज वेल। ब्लैक स्क्रीन आएगा और उस पे ना दिखता है भाई कि आपको कौन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने सिस्टम पे एंड विच वन डू यू वांट टू लोड। यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम देम यूजिंग योर कीबोर्ड। जैसे उधर आप और ये देख रहे हो ये memtest 86 प्लस करके एक फाइल है। तो जब भी आप बूट करते हो ना तभी वो memtest 86 प्लस .elf और .bin जो है ना, ये भी आपको दिखता है। आपको मेमोरी टेस्ट करना है भाई कि अपने सिस्टम का भाई कि मेमोरी वगैरह बराबर चल रहा है या नहीं, और डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर लिनक्स और समथिंग। दीज ऑल फाइल्स आर रिलेटेड टू इट। और ये init-rd जो दिख रहा है ना, init-rd.img, वो एक वो एक प्रोसेस है एक्चुअली। अगर आप ये करते हो ना, बूट करते हो ना, तो व्हाट हैपेंस इज ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट कम ऑन इट्स ओन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो इटसेल्फ अ प्रोसेस। सो उसको वो अपने आप नहीं आ सकते रैम पे। उसको लाने के लिए ना
एक और प्रोसेस लगते हैं, एंड उस प्रोसेस को लाने के लिए भी एक और प्रोसेस लगते हैं, सो समवेयर दिस हैज टू एंड. तो whenever you buy a कंप्यूटर ना, हार्डवेयर पे ना बर्न किया होता है प्रोग्राम, लाइक रैम पे परमानेंटली बर्न किया होता है प्रोग्राम, उसको रॉम बोलते हैं, रॉम, जो परमानेंटली लिखा हुआ रहता है रैम पे. रैम इज इलेक्ट्रिकल स्टोरेज. आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे तो रैम का पूरा चले जाएगा. सो वो ना रैम पे जो प्रोग्राम रिटर्न रहते हैं, वो प्रोग्राम एक और प्रोग्राम को लॉन्च करता है, एंड दैट प्रोग्राम ब्रिंग्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ होल ऑन द रैम फॉर स्टार्टिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट. ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज अ प्रोसेस. हाँ, ये याद रखना हमेशा. एक चीज बताता हूँ, एक चीज आई लाइक टू ऐड समथिंग. या ये जो हमारा वेरिटास के इंटरव्यू चल रहे थे, 20 में से 15 बच्चों से यही क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स, बिकॉज दैट कंपनी इज बेस्ड ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था. तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझो. एंड अदर थिंग इज, कभी इन फाइल से पंगे मत लेना, सॉरी, इन फाइल से कभी कुछ भी छेड़खानी मत करना. आपका सिस्टम ऑन नहीं कर होगा. मैंने किया हुआ है और बहुत सारा डेटा लॉस हुआ था मेरा, फॉर्मेट करके दोबारा से उबंटू डालना पड़ गया था. तो कभी यहाँ पे आके कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करना. सॉरी फॉर इंटरप्शन, मधुर, कंटिन्यू. सो ये जो रैम पे प्रोग्राम बर्न रहता है ना, वो स्टार्ट एल्गोरिदम को रन करते हैं, विच ब्रिंग्स प्रोसेस जीरो इनटू एक्शन. प्रोसेस जीरो brings process one in action. Process one is also known as init process, and process one brings the whole operating system on the RAM. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तन्मय, एक बार वापस बता ना, लास्ट वाला पार्ट कट गया था, मतलब मेरा इंटरनेट का इशू था. लास्ट वाला पार्ट जो तूने बोला. होता क्या है ना, when you bring like whenever you run the operating system, जब भी आप बूट करते हो अपने सिस्टम को, तो होता क्या है, पहले रैम है ना, रैम उस पे हमेशा हार्डवेयर मैन्युफैक्चर जो रैम बनाते हैं ना कंपनीज, वो लोग एक प्रोग्राम बर्न करते हैं, बर्न. दैट इज नोन एज लाइक स्टार्ट एल्गोरिदम में जो अंदर एक प्रोग्राम है, एल्गोरिदम को स्टार्ट बोलते हैं. दैट ब्रिंग्स प्रोसेस जीरो इनटू एक्शन. दैट मतलब जीरो, प्रोसेस जीरो को वो रैम पे लाता है. वो प्रोग्राम जो रहता है ना स्टार्ट, वो प्रोग्राम रन होता है खुद ही रैम पे. दैट becomes process zero. Process zero becomes process one. That process one is also known as init process. Oh sorry, process zero is known as init process and process one is known as swapper process बन जाता है वो process one बाद में. हाँ, process zero बाद में init process बन जाता है and process one becomes swapper process. And then swapper process, that is process one, brings operating system on the RAM. Operating system जब RAM पे आ जाता है ना, उसके बाद ये लोग process zero becomes init process and process one becomes swapper process. तो जो मैंने आपको स्वैप फाइल के बारे में बताया था ना, स्वैप फाइल, तो स्वैपर प्रोसेस ही जो रैम से वो फाइल में प्रोसेस को डालती है और वो फाइल से रैम पे वापस लाती है प्रोसेस को, स्वैपर प्रोसेस. और जो इनिट प्रोसेस है ना, उसको आप ऐसे समझो लाइक इसकी तरह है. मैं उनको एक्चुअली पर्सनली ऐसे कोई साईं बाबा की तरह मानता हूँ कि वो ना जिन प्रोसेस का पेरेंट नहीं है, दोज प्रोसेस आर अलोन, दे डू नॉट हैव अ पेरेंट, वो उनका पेरेंट प्रोसेस जीरो बन जाता है. लाइक पेरेंट प्रोसेस बन जाता है, वो सारे प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस है इवेंचुअली, ऐसे समझो प्रोसेस जीरो. ओके, समझ में आ गया? समझा ये इनिट समझा. प्रोसेस के बहुत सारे ये फोल्डर्स एंड फाइल्स है, क्योंकि इनिट प्रोसेस को बहुत ये लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं पूरे इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने के लिए इस पे. और ग्रब के अंदर जाओगे ना, ग्रब के अंदर, रिदम कैन यू प्लीज गो इनसाइड ग्रब फोल्डर. तो ग्रब फोल्डर के अंदर देखो, ग्रब के फॉन्ट से जब चेंज कर सकते हो, ग्रब का पूरा ये. एंड ग्रब के पास भी ना एक्चुअली डिवाइस ड्राइवर जो रहते हैं ना, कीबोर्ड और माउस के, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहते हैं. तो अभी आप बोलोगे भाई कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आता नहीं हम कीबोर्ड और माउस यूज ही नहीं कर पाते, पर ग्रब के पास भी ना डिवाइस ड्राइवर रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी ग्रब के पास भी रहते हैं, ताकि आपका माउस और कीबोर्ड चल सके और आप ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सको आपको कौन सा वाला यूज करना है. ओके, आप थोड़ा सा कीबोर्ड और माउस यूज कर सकते हो. वो इतना स्ट्रॉन्ग डिवाइस ड्राइवर नहीं रहते कि आपको सारे कंट्रोल्स या सारे कुछ दे पाए इसमें, कीबोर्ड और माउस के सारे कंट्रोल्स दे पाए, पर वो इतना काफी रहता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर पाओ, सो यू कैन बूट योर पीसी एंड यूज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके रिदम, we'll move on to next folder. अंजलि, what do you mean by I don't know actually? Can you elaborate? कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है समझने में?
Anjali, you can unmute yourself or you can type in the chat box. Okay. Okay, so let's move forward. So I'll now come on to proc folder, proc root के बाजू में लेफ्ट साइड. So अभी आप proc folder देख रहे हो, ये पूरा ना, ये पूरे क्या देख रहे हो आप, ये एक्चुअली जो आप नंबर्स देख रहे हो ना, these are actually numbers for processes, process IDs है ये सारे folders के numbers. Rhythm, can you go down till the end? इनमें से सारे प्रोसेसेस ना आपको नहीं दिखेंगे, जो भी आप देख रहे हो, ये जो नंबर्स है ना सारे नहीं देखोगे. और ये जो TTY फोल्डर देख रहे हो ना, TTY, दिस इज टेली टाइप टर्मिनल. मतलब ये टर्मिनल है जो कंटिन्यूसली ना बैकएंड में रन हो रहा है. आपको दिख रहा नहीं स्क्रीन पे. ये जो हम टर्मिनल चालू करते दैट इज डिफरेंट, उसको बैश बोलते. लेकिन ये जो TTY है ना, ये बैकएंड में चलता रहता है. मतलब जो CUI या GUI इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस TTY. तो होता क्या है ना, अगर आप समझो विंडोज में भी ऐसे रहते हैं, दिस इज ऑलवेज रनिंग. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू क्लिक ऑन अ आइकन, समझो आपके पास कोई शॉर्टकट या कोई गेम का ये दिखता है आपको, जैसे आइकन दिखते हैं शॉर्टकट विंडोज में जो इस पे हो जाते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं. तो जब आप उस पर डबल क्लिक करते हो ना, तो इंटरनली टेलीटाइप टर्मिनल पे उसका कमांड रन होता है, जो चालू करते हैं इवेंचुअली उस प्रोसेस को, उस एप्लीकेशन या प्रोसेस को, उस प्रोसेस को रैम पे लाके रन करता है टेलीटाइप टर्मिनल. और जो नंबर्स देख रहे हो ना, ये नंबर्स आपको लगता रहेगा भाई कि सीक्वेंशियली है, बट बीच बीच में बहुत सारे नंबर्स मिसिंग है. लाइक 34040 के बाद 34042 आ रहे हैं. देखो इधर, दीज आर रैंडम नंबर्स है, प्रोसेसेस के नंबर्स है, प्रोसेस आईडीज है ये सारे. ओके, इनमें से बहुत सारे प्रोसेस सिस्टम प्रोसेस है एंड बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे यूजर डिफाइंड प्रोसेस है या यूजर प्रोसेस है. Alright. We'll move on to next folder rhythm. इसमें पूरा सिस्टम के ना रन टाइम के इन्फोस है, रन टाइम के फोल्डर में, प्रॉक फोल्डर में. ओके, I'll give you the notes. These are just like, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैं आपको पूरे डिटेल नोट दूंगा हर एक फोल्डर के बारे में. डू नॉट वरी अबाउट इट, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा. सो नाउ इज द ऑप्ट फोल्डर. और ऑप्ट फोल्डर में क्या रहता है ना, थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन एंड एप्स रहते हैं, जो भी हम डाउनलोड करते हैं ना. लाइक रिदम हैज डाउनलोडेड Zoom, MS SQL, एनवीडिया का हमको ये था थर्ड ईयर, अभी फाइनल ईयर में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, इसके लिए एनवीडिया का था वो सॉफ्टवेयर, वो डाउनलोड किए. तो जो भी हम सॉफ्टवेयर खुद से डाउनलोड करते हैं ना, वो सारे इसमें आते ऑप्ट फोल्डर में. दीज आर ऑप्शनल, दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑप्ट. ओके यार, then we can move on to the next folder. Then there is dev folder, DEV, ऑप्ट के ऊपर है. अभी इसमें क्या है ना, कंटेन स्पेशल डिवाइसेस और डिवाइस फाइल्स और स्पेशल फाइल्स. ये सारे सिस्टम के फाइल्स हैं. ये सारे स्पेशल फाइल्स है जो सिस्टम को लगते हैं या हमको हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहते हैं. यू कैन सी, यू विल never ever in your life like use these files until you are a system administrator. देख रहे हो टेलीटाइप टर्मिनल के कितने सारे फाइल्स है, TTY, ये सब पीछे प्रोसेसेस चल रहे हैं. हाँ, TTY फाइल्स के उनके सारे रिगार्डिंग इन्फो वगैरह है. हाँ, इसमें इन फाइल्स में. नेक्स्ट फोल्डर इज द ETC फोल्डर. अब ETC फोल्डर में क्या है ना, ETC फोल्डर कंटेन सिस्टम रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स. सिस्टम रिलेटेड, हाँ, इन फाइल सिस्टम को ना समझ लो अच्छे से. क्या होता है जब हम लिनक्स पे काम करते हैं ना, तो कुछ इंस्टॉल करना होता है, तो वो कोई उसके लिए फाइल नहीं डाउनलोड होती है. उसके लिए हमको रिपोजिटरी पे जाना पड़ता है. वो बस उसको कॉपी पेस्ट करना था टर्मिनल पे, तो वहां से हमको यहाँ पे जाके अंदर उसको लिंक करना पड़ता है. तो अगर ये चीजें पता हो ना, तो काफी आसानी हो जाती है. मेरे को पहले नहीं पता था, तो मैंने बहुत ज्यादा खराब किया वो अपना लिनक्स. तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. और एक बार पैकेज फंस जाए ना, तो वो निकलता नहीं, उसके लिए पर्ज वर्ज लगाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है. इसलिए एक बार ये पैकेज वैकेज समझ में आ जाए ना कहाँ पे क्या फोल्डर है, तो काफी हेल्प हो जाती है. तो ETC जो मैंने बोला ना, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है.
तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मतलब क्या, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मतलब लोकल फाइल्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोग्राम, लाइक हमारे प्रोग्राम्स जो हैं या हमारे जो एप्लीकेशन है उनके प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने वाली फाइल्स को कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बोलते हैं, जो ईटीसी फोल्डर में रहती है। हाँ। और इसके अंदर ना मतलब हमेशा आपके प्रोग्राम्स वगैरह के हिसाब से ना चेंज होता रहते हैं, तो इट इज बेटर टू यू लाइक आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम यू कीप बैकिंग ऑफ दिस फोल्डर फॉर योरसेल्फ, तो आपका डेटा लॉस होने का चांसेस ना कम रहते हैं। ये आपका रिकॉन्फ़िगरेशन या आपका रीइंस्टॉल करने का ना काम बचा लेतेगा, क्योंकि आपका अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस अलग है, लाइक यू हैव स्पेशल डिमांड्स विद योर सिस्टम, लाइक दूसरे लोग नहीं करते यूजुअली वो फीचर्स यूज, तो आप उसको कॉन्फ़िगर करोगे ना तो उसके चेंजेस ईटीसी में दिखते हैं फाइल्स के अंदर, तो आप अगर बैकअप करके रखते हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में आसानी होती है। द नेक्स्ट फोल्डर इज द होम फोल्डर। अभी होम फोल्डर जैसे मैंने बोला आपको, होम फोल्डर के यहाँ अंदर देखो रिदम का ये दिख रहा है पूरा, रिदम यू अगर कैन और क्लिक ऑन कोई इट। यूजर होता तो उसका भी दिखता है यहीं पे, पर उसके लिए हाँ, शायद मुझे सुपर यूजर में खोलना पड़ता है ये होम फोल्डर, अगर कोई और फोल्डर होता तो, है ना मधुर? नहीं यू अगर अगर और एक फोल्डर होता तो उसको हम खोल सकते हैं, पर उसमें हम कुछ चेंजेस वगैरह नहीं कर चेंजेस पाते, नहीं कर सकता, या क्योंकि हम हियर। उसके लिए अदर हो जाते हैं वो, तो हमने जैसे कल देखा हम रीड ओनली मोड में एक्सेस करेंगे उस पूरे यूजर को, पर हम उसमें कुछ लिख नहीं पाएंगे। दीज आर माय दिस इज माय होम फोल्डर, यहीं पे सारी जो हमने कमांड्स यूज की हुई हैं, ये टेस्ट1 जावा, ये ये सब जो भी जो हमने यूज, जो प्रोग्राम हमने वगैरह पहले वो सब कुछ इसमें है। output.txt बनाया था, जो हम टर्मिनल पे, जो टर्मिनल खुलता है ना डायरेक्टली, वो डायरेक्टली खुलता ही इस होम फोल्डर पे है, क्योंकि उसको कहीं पे जहाँ पे ऐसा फाइल्स एक्सेस करनी होती है या कुछ भी करना होता है वो डायरेक्टली होम फोल्डर खोलता है। जो ये टिल्ट साइन है ना, इट रिप्रेजेंट्स होम फोल्डर, ठीक है? तो इसके बाद हम कुछ भी स्लैश लिख सकते हैं, हमको वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, /RDM/RDM/होम वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली यहाँ से आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही वो है /RDM/होम करके, इस टिल्ट का मतलब। The next folder is init.rd. किधर है भाई, किसमें है वो फोल्डर? init.rd 2 सेकंड ना। नहीं किसी और हाँ, init.rd का तेरे पास, अच्छा तेरे init.rd का ना फाइल्स मेरे ख्याल से तूने फोल्डर से निकाल के इसमें आ गई, init.rd img init.rd ये हाँ सब ये दिख रहा है। बाहर है मेरे पड़े हुए इनिट के फाइल्स, ये आई एन इनिट RD डॉट ओल्ड। init.rd जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो कोई एक्सप्लेन कर पाएगा विद इट? I'd like you to explain init.rd का मतलब क्या रहता है। मैंने एक्सप्लेन किया था अभी अभी, like init.rd क्या है, init क्या है, विद इट। ओके सो आई विल टेल यू init.rd क्या है ना। init जैसे मैंने आपको बताया, init प्रोसेस आता है पहले, आफ्टर इनिट प्रोसेस देन देयर इज लाइक स्वैपर प्रोसेस। तो इनिट आरडी के अंदर ना सारी बूटिंग की इंफॉर्मेशन है, बाकी आपके कंप्यूटर को कैसे बूट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे रैम पे लाना है, एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज इन इनिट आरडी फोल्डर, या इनिट के जो फाइल्स है जो आपने सिस्टम के जो रिदम के इसमें आपने देखे सारे, दोज आर ऑल फाइल्स कंटेन बूटिंग, लाइक जब भी हम पावर बटन ऑन करते हैं तो इनिट प्रोसेस पहले खुद को रन करते हैं, एंड इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल इट्स फाइल्स कि लाइक सिस्टम को कैसे लाने रैम पे, एंड एनी रिक्वायरमेंट्स और क्या। और इनिट के पहले ना सब सिस्टम ये सारे प्रोसेस चेक करते हैं भाई कि आउटपुट इनपुट डिवाइसेस सही चल रहे हैं या नहीं, या कैमरा सही चल रहे हैं या नहीं, लाइक इज देयर एनी प्रॉब्लम इन एक्सेसिंग द स्टोरेज डिवाइसेस, लाइक हार्ड डिस्क को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। अगर ऐसे नहीं होता है प्रॉब्लम, देन इट इज ऑटोमेटिकली देन इट स्टार्ट्स, वरना वो आपको बताता है भाई कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है। जैसे अगर समझो आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, तो दिखाता है भाई कि हार्ड डिस्क की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, या लाइक योर सिस्टम डजंट स्टार्ट, इट शोज सम रैंडम एरर्स जो आप समझ में नहीं आते एक्चुअली हमको, पर एक्चुअली वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। इसलिए वो ऐसे सारे हार्ड डिस्क क्रैश होगा जैसे, या रैम इज लाइक रैम में शॉर्ट सर्किट होगा, सो इट डजंट स्टार्ट, इसलिए
अगर रैम में शॉर्ट सर्किट होगा ना तो आपका प्रोसेस, आपका स्क्रीन चालू ही नहीं होगा, क्योंकि अगर स्क्रीन चालू भी होगा ना तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लाइक बिकॉज रैम पे प्रोसेस रन होते हैं, इनिट एंड ग्रब एंड ऑल, तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं. we'll move on to the next folder, that is lib, लाइब्रेरी फाइल जो उसके अंदर सारे. तो अभी आप देखोगे लाइब्रेरी के lib32 और ये भी है. आई लाइक यू टू मूव बैक रिदम वन फोल्डर. lib64 है. सो रिदम डजंट हैव lib32, बट अभी मैंने इंस्टॉल किया ना ubuntu, तो उसमें lib32 एंड libx32 भी आया है फोल्डर न्यू. सो lib क्या है ना, अगर आपका सिस्टम 64 बिट्स है, अगर आपका सिस्टम 64 बिट्स वाला है तो उसमें उसको lib64 की फाइल्स लगती है. अगर 32 बिट्स का है तो 32 बिट वाली लगती है. x64 जो अभी मतलब इंटेल के सारे प्रोसेसर है आफ्टर 64 बिट एंड ऑल, तो उसके लिए x64 वाली फाइल्स लगती है. और lib फोल्डर के अंदर ना सारी इन तीनों फोल्डर्स प्लस जो कॉमन फाइल्स है वो रहती है lib के अंदर. lib64 के अंदर 64 बिट स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फाइल्स रहती है, मतलब 64 बिट अगर हार्डवेयर है आपका तो उसके लिए स्पेसिफिक फाइल्स रहती है. 32 बिट वाले में 32 बिट स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के लिए फाइल्स रहती है. This directory contains files useful or required by computer programmer in development of your application. Like आपके एप्लीकेशन जो भी आप डेवलप करते हो अगर ना, तो उसके लिए lib वगैरह के लिए जो लाइब्रेरी फंक्शन जो आपको चाहिए रहते हैं, जैसे stdio.h है C में, then hash include input output.io.h है, ये सारी फाइल्स लाइब्रेरी के अंदर रहती है. यू कैन गो इनसाइड लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के अंदर आप देखोगे अभी आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा. रिकवरी मोड के लिए देखो, रिकवरी वाली फाइल है. इनिट के लिए इनिट वाली फाइल है. देन देयर आर मॉड्यूल्स, द फाइल यू डू नॉट नीड टू लाइक गो इनटू दैट फोल्डर रिदम. सिस्टम के लिए फाइल्स है, सिस्टम की लाइब्रेरीज है थोड़े. देन x86 देख रहे हो _64 लिनक्स JNU, तो वो वाली फाइल्स है सारी. सीपीपी जो आपने देखा ना वो C++ की लाइब्रेरीज है सारी जो रिदम ने इंस्टॉल की है C++ की. जाऊं इस Then पे? there are, I'd like you to go to into modules folder. इनटू किधर है? इसके बाहर? नहीं इसके अंदर ही है. किधर है? नेट प्लान के बाजू में सेकंड लाइन सेकंड लास्ट. मॉड्यूल्स बनाना. तो इसमें देख रहे हो ना ये सारे सिस्टम के वर्जन है, जेनरिक वर्जन या लाइक ऑल दैट. अभी आप बोलोगे भाई कि लिनक्स का वर्जन कैसे हो सकता है. लिनक्स का तो अभी मतलब ubuntu का 20.4 चल रहा है LTS. तो दीज आर लाइक बैकअप वर्जन जो जिनमें ना बहुत मेजर चेंजेस हो सकते थे. लाइक अगर समझो 5.0.023 एंड 0.025 में ना मेजर फर्क था. तो इन ये अगर हमारे पास फीचर्स अभी नहीं है तो वी कैन रिफर द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन गो इनटू दोस फोल्डर्स, फाइंड दोस फीचर्स और इंक्लूड दोस फाइल्स एंड रन इटसेल्फ. लाइब्रेरीज, ये सारी लाइब्रेरीज आपके काम की एक्चुअली. सिस्टम को अगर लगता है भाई कि जो आप फीचर सिस्टम से मांग रहे हो वो आपको नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके करंट वर्जन में वो निकाल दिए है, उसको बढ़ा दिए, लेकिन वो आपको ओल्डर वर्जन वाला फीचर चाहिए. सो इट विल गो टू दीस फाइल्स एंड इट विल रेफर टू इट. या we'll move to the next folder, that is media folder. ऑलराइट. तो मीडिया के अंदर अभी आप क्या देख रहे हो, आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है. हाई सूट सिर्फ लिखा हुआ है. सो दीज फाइल्स आर एक्सटर्नल ड्राइव्स दैट आर शोन हियर. लाइक अब अगर आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव या कोई समझो भी आपका जो यूएसबी पोर्ट्स है या माउस के लिए पोर्ट्स है, ये सारे के डिवाइस ड्राइवर्स है ना, ये सारे इसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं मीडिया के अंदर. पेन ड्राइव के लिए, सॉरी मिस्टेक डेट फॉर माई माउस एंड दिस, माउस और ऑक्स के लिए दूसरे रहते. स्टोरेज डिवाइसेस के लिए स्पेसिफिकली ये रहते. लाइक इफ यू इंसर्ट पेन ड्राइव और CD-ROM और फ्लॉपी डिस्क, तो उन सब के लिए ये सारे हैं. आई जस्ट इंसर्टेड दिस पेन ड्राइव, तो उसमें अभी ये ऐसे आया. हाँ, तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ पेन ड्राइव को, ये हट जाएगा फोल्डर. दिस इज हाउ इट वर्क्स. मैं I'll personally tell you कि आपको ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, what you do is you explore it yourself. आपको जो समझ में नहीं आता है वो गूगल कर दो या जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दूंगा ना वो रेफर कर देना बाद में. If you I'll like you to do it currently and you yourself go to these folders.
देन नेक्स्ट इज एसबिन फोल्डर। कोई बता सकता है एसबिन क्या होता है? शुभम, एसबिन क्या होता है, कोई बता सकते हैं? शुभम सोनार। ओके, अपेक्षा। नहीं, अपेक्षा से मैंने शायद पूछा ना पहले। Simran, can you please tell me what is SBIN folder? देख देख लो, अभी कुछ तो समझ में आ रहा होगा भाई कि इन फाइल्स में कुछ ऐसे कुछ कॉमन है। में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़े हुए हैं। क्या क्या? तो अभी बता देता हूँ, ठीक है चलो। एसबिन के अंदर क्या हो रहा है ना, एसबिन के अंदर सारी सिस्टम बाइनरीज है। ये सारी बाइनरी फाइल्स है जो सिस्टम को लगती है खुद को एग्जीक्यूट करने के लिए, या रन टाइम पे, लाइक समझो रन टाइम पे सिस्टम को लगता है भाई कि फॉर एग्जाम्पल लाइक रन टाइम पे सिस्टम को लगता है भाई कि अगर आपके पास रैम समझो 8 या 12 GB के ऊपर है तो डिमांड पेजिंग करके आपके इसमें रहता है। डिमांड पेजिंग इज कॉस्टली फॉर सिस्टम्स बिकॉज उसको बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, लाइक रैम ज्यादा लगता है एंड हार्ड डिस्क या एसएसडी स्टोरेज उसको अच्छा वाला चाहिए रहता है। सो डिमांड पेजिंग में क्या होता है ना, व्हेन यू लाइक डिमांड पेजिंग में कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझो यूर जैसे कल मैंने आपको दिखाया कि ब्लॉक्स में लिखते हैं, हमको एक पूरा ब्लॉक मिलता है अगर एक फाइल हम लोग न्यू बना दे तो अगर आपके ऐसी कोई फाइल है जो बहुत बड़ी है जिसके अंदर there are like operating system itself is a process which has 5 components like file handling, process handling, CPU scheduling, hardware abstraction and like this। तो अगर आपको डिमांड पेजिंग में ऐसा होता है ना, समझो अभी आपको फाइल हैंडलिंग की जरूरत है, हाँ फाइल का कोई काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो फाइल हैंडलिंग वाले कोड को पूरे के पूरे ब्लॉक को ना पेज पूरे का पूरे पेज को या ब्लॉक को रैम पे लाएगा रन करने के लिए। और जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा एंड देन यू सडनली रियलाइज की प्रोसेस वाला भी चाहिए, तो प्रोसेस वाले को भी वो रैम पे लेके आएगा एंड देन व्हेन द वर्क इज डन वो प्रोसेस वाले को भी हार्ड डिस्क पे इट विल गो बैक टू हार्ड डिस्क, लाइक हार्ड डिस्क उसको प्रोसेस को किल कर देगा, हार्ड डिस्क पे तो कोड है ही उसका, एंड इसके फाइल हैंडलिंग वाले प्रोसेस को भी किल कर देगा। सो दैट इज डिमांड पेजिंग। वरना अगर दूसरा प्रोसेस क्या है ना, फुल पेजिंग रहता है जो जिसमें पूरी के पूरे फाइल को हम लोग इस पे लेके आते हैं। सो दैट इज बल्की प्रोसेस, लाइक बहुत बल्की हो जाता है। अगर आपकी फाइल समझो 2.5 या 3 GB की है तो वो बहुत बल्की हो जाता है इस पे लाने के लिए, रैम पे लाने के लिए, लाइक योर सिस्टम बिकम्स रियली हैवी एंड इट स्टार्ट्स टू लैग और हैंग। तो इसे डिमांड पेजिंग इज यूज्ड। डिमांड पेजिंग इज एडवांस्ड एज कंपेयर टू द होल पेजिंग मेथड दैट पूरा पेजिंग लाते हैं हम लोग। इसलिए डिमांड पेजिंग को एक्चुअली अभी जो भी आप गेमिंग पीसीज वगैरह देखते हो या जो हाई लेवल हाई एंड पीसीज है वो सारे डिमांड पेजिंग यूज करते हैं। लाइक उसमें रैम बहुत ज्यादा चाहिए रहते हैं, लाइक इन द रेंज ऑफ 8 to 8+ GB चाहिए रहते हैं उसमें रैम। और SSD इज यूजफुल फॉर मोस्ट ऑफ द डिमांड पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो एसबिन में सारी बाइनरी फाइल्स है जो सिस्टम को लगती है, जो सिस्टम यूज करते हैं, और अपने लाइक दिस ch config फाइल दैट यू सॉ इन एसबिन, ch config फाइल। तो ch config क्या करता है ना, ch config इज फॉर चेकिंग कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द सिस्टम, लाइक वो बराबर है या नहीं और चल रहा है या नहीं बराबर सिस्टम, लाइक सिस्टम कंटिन्यूअसली कीप्स चेकिंग एंड डायमंड थ्रेड्स वगैरह जो चलते रहते हैं उनके रिलेटेड जो वो सब इधर पड़ी रहती है। DH क्लाइंट देख रहे हो जैसे, आई लाइक यू टू स्क्रॉल इट डाउन अ बिट। Then there is ls mod, as you saw. Reboot है, reboot file is for restarting the system. Reboot, हाँ reboot file is for restarting the system, like दो टाइप के ये रहते हैं, एक कोल्ड स्टार्ट रहते हैं और एक हॉट स्टार्ट रहते हैं। हॉट स्टार्ट इज रीबूट इज हॉट स्टार्ट, मतलब सिस्टम को हम बंद करके चालू कर रहे हैं तो वी डू नॉट हैव टू कंप्लीटली लाइक क्लोज इट, लाइक उसके साथ कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो रहते हैं ना, लाइक आपने बहुत बार देखा रहेगा विंडोज अगर आप बंद करके चालू करते हो तो फिर
अपने आप वो तो कुछ कुछ ऐसे फीचर्स रहते जो पहले आपने बंद किए थे तभी चालू थे, तो अभी वापस से वो चालू ही थे अपने आप। लाइक वो एक स्नैपशॉट की तरह रहते हैं भाई कि सिस्टम का। तो रिबूट में बहुत बार क्रोम में आपने देखा रहेगा, क्रोम में रिस्टोर पेजेस करके बोलते हैं, बहुत बार आप जब भी चालू करते हो तो पहले वाले पेजेस ही चालू रहते। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि वो रैम को उसका याददाश्त रहती है, तो उसके लिए वो तभी के तभी वैसे ही चालू होते हैं। रैम क्या करता है ना, सिस्टम होने से पहले ना सारे के सारे जो चालू चीजें रहती है ना, मतलब लाइक चालू मतलब हिंदी वाला चालू नहीं है, लाइक सस्ता मधुर मधुर, हाँ। कैन यू स्पीड तो अप, क्योंकि ये द एससी वालों प्रोसेस की। दैट आर रनिंग वो उनको नोट करते हैं। मधुर स्पीड अप, कैन यू प्लीज स्पीड अप, ये एससी वालों की हाँ हाँ, सीजी मीट है 330 पे। कवर ऑल द फाइल्स, लाइक 3 ही फाइल बची है, इसके लिए आई एम इलैबोरेटिंग अ बिट। वी हैव टाइम टिल 3:30, आई एम राइट? हाँ हाँ, और मतलब 4, बट ट्राई टू रैप इट अप अर्लियर, मैक्स 330। आई विल कवर इट, ओके cover ओके। it. We have only 3 folders left. So then there is the user folder. I guess I told about the user folder. No, no, I have not covered user folder. I'd like you to go, navigate to user folder. तो यूजर फोल्डर में भी अब क्या देख रहे हो ना, जो भी पहले से सिस्टम के साथ इंक्लूडेड है, जैसे गेम्स और बाइनरी फाइल्स, सिस्टम बाइनरी फाइल्स, ये सब है। आई लाइक यू टू गो इनसाइड बिन फोल्डर। ये यूजर की बाइनरी फाइल्स है, यूजर की, लाइक यूजर को जो लगती है, लाइक सिस्टम को नहीं है, बट अब आप बोलोगे यूजर को जो लगती है मतलब हमारे प्रोग्राम्स, नहीं नहीं वो नहीं है। तो हमारे जो रिसोर्सेज वगैरह जो हमको लगते हैं, और ये सबसे ज्यादा ये खाती है फाइल सिस्टम में जगह। I'll okay, if it is not loading because it is huge, I'll like you to navigate to its properties, user folder का पूरा हो गया ये, properties। खुल गया ये। ये फाइल का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। फोल्डर का साइज बहुत बड़ा है। बिन, और इसमें बिन का सबसे ज्यादा बड़ा होता है। जैसे कल मैंने तुम लोगों को दिखाया था ना, वो विच कमांड यूज करके, वेयर विच कमांड इज स्टोर्ड वेयर, ऑल दीज कमांड्स, जो बेसिक कमांड्स होते हैं जो यूजर्स की होती है, वो सब यहाँ पे स्टोर होती हैं। मेन कमांड्स, वो एलएस वगैरह भी यहाँ पे होगी स्टोर कहीं ना कहीं। तो वैसा होता है। तो शुड आई गो बैक? मधुर, look at its size. मधुर, किधर गए? ओके, बैक करके यूजर का प्रॉपर्टी बताऊं? Your voice is breaking, मधुर। Look at its size। ये ऐसे ही होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मेन फाइल्स होती है यूज़र की, जो वो मोस्टली यूज़ करता है, तो इसलिए उसका साइज बढ़ता है। तो और हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो तब भी इसका साइज बढ़ता है, क्योंकि कुछ कमांड्स इसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। मधुर, व्हाट हैपेंड? there was actually a problem in my internet connection. Okay, so I was on user. Yeah, so I told you to show the user size. कीप ऑन इंक्रीजिंग। Rhythm. किया मैंने, खोला हुआ मैंने वो यूज़र की प्रॉपर्टीज, बट ये अभी खत्म नहीं हुआ है, चले जा रहा है। तो अभी इसमें साइज कितना दिख रहा है? 12.6 GB। So yeah, now you can see like
इट इज कैलकुलेटिंग। देख सकते हो बहुत बड़ी फाइल है, 12.6 GB कंटेंट्स, क्योंकि इसके अंदर ना सारी यूजर की गूगल प्रोग्राम्स एंड डेटा रहती है, और इसका लार्जेस्ट शेयर रहता है फाइल सिस्टम, लाइक इट एक्वायर्स द मोस्ट ब्लॉक्स ऑन द फाइल सिस्टम। All right. Okay, and then this var folder, var. Opened. Madhur. I think we should wrap for now. Madhur, should we? कुछ हो सकता है अभी क्योंकि टाइम है थोड़ा सा, ये फाइल सिस्टम कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। Hello. Yes. So I was on user file. User file is done. So now You- the last two var- files are var file. /var file. Yes. Folder. I have opened it. तो var फोल्डर में क्या रहता है ना, इसमें सारे सिस्टम के लॉगिंग फाइल्स रहते हैं और रन टाइम इन्वायरमेंट रहते हैं। लॉगिंग फाइल्स मतलब जो सिस्टम लॉग रखते हैं एक प्रोसेसेस का, बाकी कौन सी प्रोसेस ने रैम पे कितना टाइम लिया, उसका उसने क्या किया, कौन से फाइल्स को उसने एक्सेस किया एंड ऑल। सिस्टम पूरा लॉग रखते हैं एक फाइल्स का, कौन सी फाइल ओपन हुई थी एंड कौन सी नहीं हुई थी, या लाइक कौन सी यूज हुई थी, कौन से में क्या चेंजेस हुए, आइनोड नंबर उन सब का, वो सब का ना सिस्टम लॉग रखते हैं इसके अंदर, वेयर फाइल्स के अंदर। आई एम ऑडिबल इफ आई एम Yes, नॉट रॉन्ग? yes, you are audible. देन देयर इज इसमें सिस्टम के फाइल्स मतलब मेल और प्रिंटर वगैरह भी रहते हैं। I'll tell about it more in detail a bit. हाँ, तो var फाइल में कैसे रहते हैं ना, ये सारे var के अंदर ना ट्रांजिएंट एंड टेम्पररी फाइल्स रहती है। हाँ, टेम्पररी फाइल, सॉरी, टेम्पररी फाइल्स ये सब लॉगिंग के टाइम पे ना सिस्टम जब भी आप चालू करते हो ना, तभी ये फोल्डर के अंदर फाइल्स बनना शुरू होती है, फोल्डर के अंदर ये सारे फोल्डर्स बनना शुरू होते हैं और फाइल्स बनना शुरू होती है। और जब भी आप शट डाउन करते हो ना, तो ये पूरा फोल्डर को क्लियर करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक इट क्लियर्स एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन एंड लाइक मतलब इसके अंदर पूरा डेटा रहता है जो आपने किया या यूज किया। उसका वो बात अलग है कि मतलब वो सिस्टम के पड़ा रहता है उसका लॉग वगैरह, पर आपके इधर से डिलीट हो जाएगा, मतलब ये फोल्डर क्लियर हो जाते हैं। फिर वापस जब भी आप लॉग इन यू विल बूट द सिस्टम ना, तभी वापस चालू हो जाते हैं। एंड देन देयर इज द लास्ट फाइल्स फोल्डर दैट इज टेम्पररी, TMP। इसके अंदर सारी टेम्पररी फाइल्स रहती है जो आप यूज करते हो। अभी इनके ऊपर लॉग दिख रहे, लॉग, दैट इज बिकॉज दीज आर करंटली अंडर यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रैम पे सारी फाइल्स, इनके अंदर सारे प्रोसेसेस है जो अभी रैम पे, इनको आप यूज नहीं कर सकते हो। एंड दीज आर स्पेशल परमिशन फाइल्स लाइक सुपर यूजर, सूडो, लाइक रूट यूजर ही यूज कर सकते हैं। इन दिस केस रिदम इज हिमसेल्फ द रूट यूजर, तो वो इनको एक्सेस कर सकता है, पर इसके अंदर लॉक लगा हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉक ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। दीज आर ऑल टेम्पररी फाइल्स। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था व्हाट्सएप पे .i.s और .u फाइल का, तो उसमें कैसे रहते हैं ना, उसका एक कमांड है, वो कमांड मैं आपको दे दूंगा। जब भी आप कोई प्रोग्राम सी का रन करते हो ना, तो डैश सेव टेम्स करके ये आते हैं। आई विल पुट इट इन अ चैट बॉक्स, वो कमांड, तो आपको पता चल जाएगा। लाइक समझो मेरे फाइल का नाम ये hello.ca, तो यू विल राइट gcc space that I'll write in the chat box. So I've put it in the chat box like gcc space save temps। तो टेम्पररी फाइल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है ना, जब प्रोग्राम को रन करता है, वो सारी फाइल्स
उनको बना के ना यूज काम हो जाता है तो उनको अपने आप डिलीट कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो hello.c हमारी फाइल है, तो अभी सेव टाइम्स करेंगे ना तो .i.s एंड .o फाइल सेव होंगी और उनके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट कोड एंड वन वुड बी जिसमें असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ रहेगा। दीज ऑल फाइल्स आर विल बी सेव्ड। और डैश ओ जो देख रहे हो ना, तो डैश ओ मतलब आउटपुट, वी नीड दैट आउटपुट इन हेलो, तो उस पर उसको हमको रन करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी .my.exe डालोगे ना आप, तो आपकी exe रन हो जाएगी, तो आपका प्रोग्राम जो भी इसके अंदर था ना वो रन हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू। I was about to show that code, but because we have a limit on time, I won't be able to show it now. I'll explain to you the inode one of the smallest things. I'll share the screen. I hope you are all able to see my screen. Yes. So अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये एक्सप्लेन करना था। सो दिस इज जो आप देख रहे हैं विंडोज XP तक का जितना है SDA1, तो दैट इज वन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क। द सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज SDA2 दैट इज Ubuntu एंड SDA3 दैट इज Fedora। तो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम समझो आपके पास है अभी हार्ड डिस्क पे। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो व्हाट हैपेंस इज दिस इज तो विंडोज XP हमने फर्स्ट क्यों डाला है, क्योंकि विंडोज का ना कैसे एक ये प्रॉब्लम है, मतलब वो विंडोज का ना एक जिद है बच्चों की तरह भाई कि हमको फर्स्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू कैन नॉट इंस्टॉल विंडोज ऑन अ लिनक्स कंप्यूटर, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लिनक्स कंप्यूटर, मतलब जिसपे लिनक्स है ना पहले से सिर्फ ओनली लिनक्स इज देयर ऑन दैट कंप्यूटर, तो उस पर विंडोज नहीं इंस्टॉल कर सकते। पहले आपको लिनक्स को निकाल के विंडोज डालना पड़ेगा, या फिर बहुत प्रॉब्लम देते हैं विंडोज। तो इसमें बीबी जो आप देख रहे हो ना, दैट इज बूट ब्लॉक। बूट ब्लॉक के अंदर वो स्टार्ट एल्गोरिदम एंड वो सब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स रहती है, इनिट प्रोसेस वगैरह, वो बूट ब्लॉक के अंदर रहते हैं। देन एसबी दैट यू आर सीइंग इज सुपर ब्लॉक। सुपर ब्लॉक क्या रहते हैं ना, सुपर ब्लॉक के अंदर ना DILB के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। DILB के बारे में बताऊंगा मैं, और सुपर ब्लॉक के पास पूरा DILB का इन्फॉर्मेशन रहता है। DILB बेसिकली कंटेन्स ऑल द आइनोड्स इनसाइड इट। आइनोड्स वगैरह जो है ना, आइनोड्स क्या रहते हैं ना, आइनोड्स DB में जो ब्लॉक्स है ना उनके बारे में, और उनके अंदर जो फाइल्स है उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रखता है। आइनोड के अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है भाई कि उसका लाइक व्हाट इज इट कॉल्ड, बाकी फाइल का अपेंड मोड में अगर आप चालू करते तो अपेंड किधर से करना है, अगर अपेंड मोड में नहीं डालते तो स्टार्टिंग किधर से, और फाइल का साइज कितना है, फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए एंड ऑल दैट, लाइक फाइल का डेट कभी बना था, फाइल को मॉडिफाई कब किया गया था, फाइल को चेंज कब किया गया था, ये सब उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। DILB बेसिकली कंटेन्स ऑल द आइनोड्स। आइनोड्स मतलब कैसे ना, लिंक लिस्ट के अंदर लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, नोड, तो वो नोड्स है आइनोड्स। वो इसके अंदर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इतना याद रखना। आउट ऑफ देम सम नोड्स आर एम्प्टी, सम नोड्स आर फिल्ड। जो नोड्स फिल्ड है उनके अंदर फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और वो फाइल्स के अंदर डेटा ब्लॉक में DB। DILB का फुल फॉर्म है डेटा आइनोड लिस्ट ब्लॉक। I'd like it to note you to all to note it down. DILB के अंदर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है ऑफ आइनोड्स। आइनोड के पास इंफॉर्मेशन है। सुपर ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है भाई कि कौन से आइनोड्स फ्री है, जिनके अंदर भी कोई डेटा नहीं, कोई फाइल को वो करस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और और वो भी इंफॉर्मेशन रहती है भाई कि कौन से आइनोड्स फुल है जिनके अंदर लिखा हुआ है, लाइक और कौन से आइनोड से लिख सकते हैं हम, लाइक अभी समझो कोई आइनोड फ्री है तो वेयर वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग फॉर इफ वी क्रिएट अ न्यू फाइल, तो वो डेटा एज सुपर ब्लॉक के अंदर रहते हैं। और कौन सा आइनोड लिखा हुआ है सारे उसके अंदर भी लिखे हुए रहते सुपर ब्लॉक के अंदर। और डेटा ब्लॉक इज द मेन। डेटा ब्लॉक के अंदर ना पूरा डेटा रहता है। जब आपका स्पेस फुल हो जाता है ना, दैट मीन्स डेटा ब्लॉक इज फुल, और इधर DILB इज फुल, मतलब आपके पास कोई आइनोड नहीं है अभी न्यू इसके लिए ब्लॉक्स के लिए, लाइक आपके पास आइनोड खत्म हो गए फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल्स, या आपके पास डेटा ब्लॉक में स्पेस नहीं है। सो डेटा ब्लॉक इज मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ना डेटा ब्लॉक फुल हो जाते हैं, तो डेटा ब्लॉक में लिखने के लिए जगह नहीं रहती, ब्लॉक्स बचे नहीं रहते ना, तो इसके लिए हम और लिख नहीं पाते। जब DILB बहुत रेयर केस में फुल होता है, लाइक आपके पास बहुत सारी ऐसी फाइल्स है जो बहुत छोटी है एंड आपका कंप्यूटर उससे पूरी तरह से भर चुका है। लाइक आइनोड का जब स्टार्ट करते हो ना, तो आप आइनोड जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हो ना, तो यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द नंबर ऑफ DILBs यू वांट।
mostly like approximately 50,000 DILBs are given to you, 50,000. ओके और DILB के अंदर वो भी इंफॉर्मेशन रहती है, मतलब iNodes के अंदर वो भी इंफॉर्मेशन रहती है भाई कि कौन से ब्लॉक्स हमारे लाइक विच ब्लॉक्स डू आई करस्पॉन्ड टू. समझो आपने hello.txt की एक फाइल लिखी, तो यू हैव सपोज यू हैव लाइक 160 KB ऑफ डेटा इनसाइड दैट hello.txt. तो 160, जबकि ब्लॉक ऑन डेटा ब्लॉक में एक ब्लॉक इज ऑफ 1 KB, तो 160 ब्लॉक्स आपके पास है डेटा ब्लॉक के यहाँ फिल्ड, एंड वन inode alone is corresponding to that all the blocks. तो उसके अंदर ब्लॉक नंबर लिखे हुए रहते हैं, एड्रेस रहते हैं ब्लॉक्स का, लाइक इट इज अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू ऑल द ब्लॉक्स दैट कंटेन इट्स डेटा, लाइक hello.txt का डेटा कौन से ब्लॉक्स में, सो इट इज कनेक्टेड टू दैट. दिस इज द storage or file system of a Linux operating system or any other operating system. ऐसा रहता है. बूट ब्लॉक रहते हैं, सुपर ब्लॉक रहते हैं, DILB रहते हैं और DB रहते हैं. तो अभी आप बोलोगे दो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो बूट ब्लॉक के अंदर यूबंटू का, इस केस में यूबंटू और फेडोरा का बूट ब्लॉक ना पूरी तरह से खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बूट ब्लॉक सबके लिए सेम रहते हैं और एक ही बूट ब्लॉक की जरूरत पड़ती है. दूसरे बूट ब्लॉक्स को एम्प्टी रहते हैं, जबकि उनके लिए स्पेस एलोकेटेड रहती है और बूट ब्लॉक का साइज 1 KB रहते हैं, 1 KB. एंड सुपर ब्लॉक का साइज भी अप्रोक्सीमेटली 1 KB to 4 KB तक रेंज कर रहा है. आई गेट द एग्जैक्ट नंबर्स फॉर यू. बाकी DILB एंड DB का ब्लॉक डिपेंड करते हैं आपके हार्ड डिस्क साइज के ऊपर. ओके, I'll end the session here, I guess. आपको ये दिखा देता हूँ फोटो, बाकी आपने जो देखा था. I have written the command in the chat box. कि आपको You can ये explain this command tomorrow, Madhur. या There won't be a problem. तो आज का यहीं पे कंक्लूड करते हैं सेशन. कल मैं तुमको पाइपिंग सिखाने वाला हूँ और आज मैं थोड़ा सा तुमको असाइनमेंट भेजूंगा शायद व्हाट्सएप पे. तो वो असाइनमेंट भी देखना, ट्राई टू सॉल्व इट, और कल बताना कुछ इशू आया तो उसमें. तो आज पहले हमने थोड़ा सा वो देखा था कि रीडायरेक्शन कैसे करते हैं डेटा स्ट्रीम्स की, और अभी इसने मधुर ने तुमको वो सिखाया फाइल सिस्टम क्या होता है. तो कल हम इनसे रिलेटेड हम ज़्यादा कमांड्स पे ध्यान देंगे रादर देन दिस थियोरेटिकल नॉलेज, बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. तो कल हम कमांड्स पे ज़्यादा मूव करेंगे और फोकस करेंगे. सो आई विल मीट यू टुमारो, एंड मीनवाइल आई विल गिव यू एन असाइनमेंट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. थैंक यू. Yeah, thank you so much. आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं, डाउट्स है तो पूछ सकते हो अभी. No doubts yet. आपने अच्छा समझाया, समझ में आया, क्योंकि हमें बिगिनर लेवल की होना, तो समझ में आया आप दोनों का भी. ऑलराइट. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हो हमको पर्सनल चैट पे. ओके, Yeah, sure. थैंक यू. Yeah, thank you.